اور کان کھول کے سننا، کان کھول کے سننا، جو وہابیوں کے ساتھ رشتے کرتا ہے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، اور ایسے پیروں سے جو مرید ہے جن کی داڑیاں نہیں ہے وہ بھی تباہی کا شکار ہے۔ اسلام شریعت سے چلتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں چلتا۔ آپ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ بہت خوب سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جس حصے کو کاٹتا ہے تو کاٹنے والا ڈاکٹر آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرنا، بولو یہی ہے نا۔ اگر آج بریلی کا یہ غلام آ کر آپ کو کھلی کھلی بات بتا رہا ہے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کے مطابق کر رہا ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا، جس کی بد عقیدہ کے ساتھ رشتہ داریاں ہو، جس نے اپنی بیٹی بد عقیدہ کے یہاں دی ہو، جس نے وہابی کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دے دی ہو، تو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، نام ہے ازالۃ العار بحجر الکرائم الکلاب النار۔ اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے نہیں لکھا ہے، امام اعظم کا قول ذکر کیا ہے، سرکار کی حدیث ذکر کی ہے، قرآن کی آیت ذکر کی ہے، مصطفیٰ کا فرمان ذکر کیا ہے، اور اس کی روشنی میں کتاب لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بیٹی دی ہے، اگر اس وہابی کے عقیدے کفریہ ہے تو جس نے اپنی بیٹی دی ہے پوری زندگی کے لیے اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کر رہا ہے، یعنی پوری زندگی نکاح تو ہوا ہی نہیں، زنا ہی زنا ہے، حرام کاری ہے، مکاری ہے۔ اور یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے جو کتاب کا نام رکھا بحجر الکرائم الکلاب النار، ان کو جہنمی کتا بتایا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اہل البدع کلاب اہل النار، جتنے بھی وہابی دیابنا چکرالوی جتنے بھی گمراہ بدین لوگ ہیں یہ انسانی شکل میں در حقیقت جہنمی کتے ہیں۔ اور یاد رکھنا وہ انسان کبھی عقلمند نہیں ہو سکتا جو اپنی پاکیزہ بیٹی کو کسی کتے کے نکاح میں دے رہا ہے۔ کیجیے سے آپ لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنیں، لفظ کتا بولا ہے میں نے، اس پر بھی دلیل دے رہا ہوں، سرکار کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، کسی کی مائی نے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنا دینا اوروں کو، کسی کی مائی نے اگر دودھ پلایا ہے تو میرے سامنے بیٹھ کر اس بات کو غلط ثابت کر کے دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں اہل البدع کلاب اہل النار۔ اب ایک آسان مثال دے رہا ہوں، یہ ہمارا بھائی بیٹھا ہے، آج منع تھا، کھانا کھلایا لوگوں کو نہیں کھلایا؟ جی ارے دولہا میاں کیا کر رہے ہیں، کھانا کھلایا لوگوں کو؟ جی یا ولیمہ کرو گے؟ ولیمہ بھی کر لینا ہے نا، ہاں زیادہ بڑا نہ صحیح تو چاہے دو چار لوگوں کو کھلا دینا، لیکن سنت رسول ادا ہو۔ ولیمہ حیثیت کے مطابق، علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد، میرے نبی نے ایک بار ایک بکری کا ولیمہ کیا، اور فرما رہے ہیں۔ اچھا ادھر میری طرف دیکھیں، یہ ہمارا بھائی کھانے کے لیے آیا، جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا برابر میں گلی کا کتا آ کے کھڑا ہو گیا اور پلیٹ کی طرف منہ بڑھایا، لیکن نہ پلیٹ منہ سے ٹچ ہوئی نہ منہ پلیٹ سے ٹچ ہوا، بس دور سے اس نے ایک سانس لے لی۔ کھانا کھاؤ گے بھیا؟ بولو یار بولو، کھاؤ گے؟ دل کرے گا کھانے کو؟ نہیں کرے گا نا؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی تو اس نے منہ ڈالا بھی نہیں ہے، منہ ڈالا بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے نہیں کھا سکتا۔ ارے سنیو، اب تو سمجھ جاؤ، جب دنیا کا کتا پلیٹ کے قریب آ جائے تم کھانا چھوڑ دیتے ہو، تو جو جہنمی کتا ہو اس کو بیٹیاں دے کیسے دے؟
इस धोखे में मत रहना। और जितनी मेरी बहन बेटी है यहाँ बैठी है, अगर कोई बाप ऐसा हो जो कहे कि मैं अपनी बेटी की शादी फला सऊदी रिटर्न के साथ कराऊंगा, सऊदिया में काम करता है लेकिन अकीदा बिगड़ गया है, वहाबी बन गया है, गैर मुकल्लिद बन गया है, चक्रालवी बन गया है, राफसी और शिया बन गया है, नीम राफसी बन गया है, अगर ऐसे लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता है जो मेरी बहनें कुंवारी है वो इस पैगाम को लेकर के जाए, तो इस वक्त अपनी जबान को बंद मत करना। तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा बाप कहीं रिश्ता कर रहा है, अपने बाप से कुछ पूछो या ना पूछो, लेकिन इतना जरूर पूछना, ये बाप जरा ये तो बताओ वो सुन्नी है कि नहीं, सरकार से मोहब्बत करता है कि नहीं, अकीदा अच्छा रखता है कि नहीं, आला हजरत को मानता है कि नहीं, ताजुल शरिया से प्यार करता है कि नहीं, नबी करीम को आलिम गैब मानता है कि नहीं, पावरफुल नबी मानता है कि नहीं, नबी को अपने जैसा बशर तो नहीं कहता, सरकार की तौहीन तो नहीं करता, नबी पे सलाम पढ़ता है कि नहीं, नबी पे दुरूद पढ़ता है कि नहीं, फातिहा दिलाता है कि नहीं। इसलिए कि बाप तो शादी करके अपने घर बैठा रहता है, अब झेलना तुम्हें होगा। अगर फातिहा का मुखालिफ है झगड़ा तुम्हारा होगा, नबी का गुस्ताख है कुरत तुम्हें होगी, नबी का गद्दार है तकलीफ तुम्हें होगी, जहन्नम में तुम्हें उसके साथ नहीं जाना है, बल्कि तुम्हें तो असरकार फरमाते हैं ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की नहीं मानी जाएगी। अगर बाप वहाबी से शादी कराने पर पसंद हो जाए तो मैं यहाँ की बेटियों से कह के जा रहा हूँ, अपने बाप से कहना खबरदार, मैं एक सरकार के गरीब वफादार से तो शादी कर लूंगी लेकिन किसी मालदार गद्दार से कभी शादी नहीं करूंगी। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, पैगामे मुस्तफा सुन्नते मुस्तफा, खलीफे सरकार ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम रज़वी नारे तकबीर। तो याद रखो, जब सरकार ने कानून दे दिया कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की नहीं मानी जाएगी, तो अगर बाप जबरदस्ती करता हो तो बेटी को फुल इख्तियार है कि रिश्ते को मना कर दे। शरीयत की नजर में वो बेटी अपने बाप की गद्दार नहीं कहलाएगी बल्कि दर हकीकत मुस्तफा की वफादार कहलाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसे बाप नालायक और कम वक्त है जो अपनी बेटियों को उन कुत्तों के निगाहों में देकर पूरे माशरे को खराब करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे गांव में ऐसा नहीं होता? मिसाल के तौर पर नकीब इजलास बैठे हैं, इन्होंने तुम्हारे भाई की दावत नहीं की, तब तो बड़े फख्र से कहते हो मेरे भाई को याद नहीं किया, मैं कैसे इसकी शादी में चला जाऊं। पूरा खानदान एक आदमी की वजह से दूसरे खानदान में बैठा गवारा नहीं करता, जबकि जिसको मना कर रहा है वो खुद भी सुन्नी है, वो खानदान भी सुन्नी है, लेकिन थोड़ी सी खेत की वजह से अनबन हो गई है, कोई माल की वजह से अनबन हो गई है, इलेक्शन की वजह से अनबन हो गई है, आपस में इख्तिलाफ हो गया है, तो शादियां छोड़ दी जाती है। तो मैंने कहा गैरत वहां कहां मर गई जब तेरे चचा से अगर जरा सी नोक झोंक हो जाए, जरा सा इख्तिलाफ हो जाए, तो ऐसी सूरत में तू उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करता। तो नबी से अगर वफादारी है, जिस शादी के अंदर कोई वहां भी आता हो उसमें भी जाना पसंद मत करो, कहना हम वही जाएंगे जहां मुस्तफा के वफादार आ रहे हैं। बहुत अच्छा पैगाम। बात फैल जाएगी, थोड़ी सी और बात अर्ज कर देता हूँ। सहनो दिमाग को हाजिर कीजिए, इधर 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 मेरी तरफ बातचीत नहीं, सुने जरा ध्यान से, गौर कीजिएगा, हंसने का मौका नहीं, चुल्लू भर पानी में जाकर के डुबकी लगाने का मौका है। मरने का ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, डुबकी लगाने का मौका है, कफे अफसोस मलने का मौका है। जिस इंसान को नबी के गद्दारों से नफरत न हो वो पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। कब्र में तुम्हारा मेरा बाप नहीं आएगा, रसूल पाक आएगा। सुभान अल्लाह। समझ गए? हजरत अली फरमाते हैं आदाऊ का सलासतुन अदुव्वु का व अदुव्वु सदीक़ी का व सदीक़ु अदुव्वी का। बड़े प्यार से समझ लेना इसको। हजरत अली ने फरमाया तुम्हारे दुश्मन की 3 किस्में हैं। ऊंचा बोलो कितनी? 3। एक तो तुम्हारा दुश्मन, समझ गए, एंटीने वाला। दूसरा कौन है? अदुव्वु सदीक़ी का, तेरे दोस्त तेरे महबूब का दुश्मन। तो तेरे महबूब है मदीने के सरकार, बोलो यार मोहब्बत से।
सो क्यों रहे हो, खो क्यों रहे हो? खोना है तो ऐसे खो, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। सुभान अल्लाह। अगर खोना है तो मदीने की मोहब्बत में ऐसे खोना जैसे आला हजरत खो गए। और फरमाना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अदुव्वो सदीकी का जो तेरे महबूब का दुश्मन हो। हमारा महबूब गुंबद खजरा में आराम कर रहा है, हमारा आका गुंबद खजरा में आराम फरमा रहा है। हजरत अली कहते हैं जो तेरे नबी से दुश्मनी रखता हो तो वहाबी को नबी से दुश्मनी है, देवबंदी को नबी से दुश्मनी है, तबलीगी और जमात वालों को नबी से दुश्मनी है। और जब इनको नबी से दुश्मनी तो हमारे महबूब के दुश्मन, और जो हमारे महबूब के दुश्मन है बोलो वो हमारे भी दुश्मन। वह सदी को अदुव्व का, इसी को कहते हैं सुले कुल्ली। सुले कुल्ली समझते हो? देवबंदियों में भी शादी, सुन्नियों में भी शादी। अब उसने कहा कि अरे यार तुम तो सुने, हम काहे के सुले कुल्ली है, हम क्या 11वीं नहीं खा रहे? हमने क्या 11वीं खाने से कंप्लीट होगा या मुस्तफा की वफादारी दिखाने से कंप्लीट होगा? अपनी बेटी को वहाबी के यहाँ दे भी दिया। सरकार फरमाते हैं वला तुवाकिलूहु वला तुशारिबूहु वला तुजालिसूहु वला तुजालिसूहु वला तुनाकिहुहु व इन मरिदू फला तऊदूहु व इन मातू फला तुसल्लू अलैहिम। सरकार ने फरमाया इन गुमराह बददीन लोगों के साथ बैठ कर ना तो खाना खाना है, ना पीना है, ना इनके साथ शादियां करना है। अगर बीमार पड़ जाए इनको देखने भी नहीं जाना है, अगर मर जाए इनकी जनाजे नमाजे जनाजा भी नहीं पढ़ना है, जनाजे में शिरकत भी नहीं करना। अब बताओ नबी से ज्यादा रहम करने वाले तुम हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते। लेकिन सरकार ने अपने गद्दारों को पसंद नहीं किया। सरकार ने फरमाया इनके साथ खाना भी नहीं है। तो खाना ना खाने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी शादी में वहां भी आ गया अपने घर पे कदम रोक लो, बेटी से कहो बेटी खाना बना, वो कहे क्यों अब्बा दावत है, कहना मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां खाने से मेरे नबी ने मना कर दिया हो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं वाला तुशारिबूहु, उनके साथ पीना भी नहीं है, न खाना है न पीना है। हमने कहा यार अगर अपनी बेटी को आपने किसी बदअकीदा के निकाह में दे दिया, दामाद जब आएगा, दामाद जब आएगा, दामाद के साथ साथ उसका बाप आएगा, समधी बनकर के आएगा, बोलो उस बदअकीदा की ताज़ीम करोगे कि नहीं करोगे? उसको बिठाओगे भी चारपाई पर, उससे ईद भी मिलोगे, उसके लिए खाना भी बनाओगे, उसको इज्जत से खाना भी खिलाओगे। और सरकार फरमाते हैं बल वकरा साहिबा बिदातिन फकद आना अला हदमिल इस्लामी, जो किसी बदअकीदा की थोड़ी सी भी तौहीन किया करता है वो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करता है। काय के मुसलमान है यार? किस चीज के मुसलमान? कहाँ है सुन्नियत तुम्हारी? अगर तुमने नबी के गद्दार के साथ रिश्ता कर लिया तो काय की सुन्नियत? कब्र में जाके मुंह क्या दिखाओगे? बोलो। मालूम है आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, दोनों से एक बंदा चिढ़ता था। खासकर ये बड़े बड़े उम्र दराज लोग जो है जरा पैगाम लेकर के जाए। यहाँ से हटने के बाद में अरे छोड़ो ये मौलवियों का झगड़ा है। मैंने कहा मरेगा तब समझ में आएगा तुझे मौलवी का झगड़ा है कि इस्लाम और मोहब्बत का झगड़ा है। हम लोगों को पागल समझते हैं लोग कि इनका तो इख्तिलाफ वाली बातें करते। अरे भाई इख्तिलाफ वाली बातें नहीं करता मैं मुस्तफा करीम की मोहब्बत वाली बात करता। इस्लाम में सहाबा इकराम की 2 खूबियां बयान की गई। पढ़िए आप 26वें पारे को, वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम। कुरान ने कहा मेरे नबी के सहाबा की 2 खूबियां हैं, नबी के गद्दारों के लिए सख्त है और वफादारों के लिए रहम दिल है। बात समझे कि नहीं समझे? अब जरा वाक़िया सुने। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब शरह सुदूर के अंदर इस वाक़िए को जिक्र फरमाया है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते जरा वो लोग जिन्होंने शादियां कर ली है, समधी बन के आया उसके साथ बिल्कुल मस्ती के साथ बातें कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, दामाद बना लिया है, उस कुत्ते को बुलाते हैं। ये मैं कुत्ता हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ। आला हजरत ने यही तो दुआ की है, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेदिया के वास्ते। ये आला हजरत ने कौन से कुत्ते? तुम्हारी गली
पूछी कि कुत्ते मुराद लिए हैं? नहीं, वहाबी मुराद लिया है, देवबंदी मुराद लिया है, चकरालवी फिरकाए बातिला, जितने भी गलत फिरके पाए जाते हैं इस्लाम से हटकर, ये सब मुराद लिए हैं। और इनसे बचने के लिए दुआ की है कि पहले शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, इधर आप मेरी तरफ गौर से जरा देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर हमारे फारूक आजम का एक दुश्मन था, दुश्मन। जरा गौर करना, मैं सरकार के दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूँ, नबी के दोनों यारों के दुश्मन की बात कर रहा हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, एक बंदा ऐसा था कि जो इन ऐसे बंदे के साथ बैठता था, मीटिंग करता था, उसकी सोहबत में रहता था, उससे बातचीत किया करता था, जो हकीकत में अबू बकर और उमर का गुस्ताख था। ये बैठने वाला खुद गुस्ताख नहीं था, बल्कि जिनकी महफिल में बैठता था वो दोनों गुस्ताख थे, वो दोनों गुस्ताख थे। लेकिन उन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं जो खाली जाके उनकी गुस्ताखी सुन लेता था, जबान से कुछ बोलता नहीं था, खाली गया सुन के चला आया, गया सुन के चला आया। अचानक इसका इंतकाल हो जाता है। जैसे ही इंतकाल होने का वक्त करीब आता है, इस पर कैफियत बदलती है, लेकिन अभी जबान बोलने के काबिल थी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते, भाई जरा मेरी तरफ तवज्जो करके जरा गौर से इस वाक़ये को सुनिएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, इसके करीब घर वालों ने आकर कहा, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कई बार कोशिश की लेकिन कलमा उसकी जबान पे चढ़ा ही नहीं समझे बात? कलमा जबान पर नहीं चढ़ा, और जब कलमा जबान पे नहीं चढ़ा तो घर वाले परेशान। अभी जबान बोलने के काबिल थी, बोलने के काबिल थी। इसने घर वालों ने पूछा, मियाँ तुम कलमा पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अब यार इन जुमलों पे तवज्जो नहीं जाएगी तो बिल्कुल बेकार है। यही वाकया तो सुनाना है आपको, पूरा वाकया खत्म होने के बाद नहीं, बल्कि वाकये की जो अब जुमले सुनाने जा रहा हूँ यही तुम्हारी आंखें खोल देगा। हजरत अली ने फरमाया, अन्नासो नियाम इज़ा मातू इंतबहू। अभी तो लोग बिल्कुल एकदम गफलत की नींद सो रहे हैं। वहाबी के साथ भी दोस्ती, देवबंदी के साथ भी दोस्ती, हलाल भी हराम भी, इसका छीना उसका छीना, इसको गाली उसकी गाली, गीबत चुगली, आज जितनी बुराइयां हो सकती है सारी बुराइयां। अभी तो गफलत में पड़े। हजरत अली फरमाते हैं, जब मरेंगे ना तब आंखें खुलेंगी, तब समझ में आएगा दुनिया में करना क्या था, हम करके क्या आए। इस कीमती जिंदगी को तबाह करने से होने से बचाइए। जरा गौर फरमाइएगा। मेरा बाया जाने बड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है, इनको भी बताइए इमाम साहब क्यों ना। अब मैं आपकी भी सपोर्ट चाहता हूँ, आप तो मेरी बस्ती के रहने वाले हैं, कम से कम इस महारा कर आप मेरा ख्याल कीजिए और मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए सब, इनसे वही नारा लगवा दीजिए जिससे बेदार हो जाए। दिल से मेरे हुजूर के नाम को एक मरतबा जरा दिल से पुकारे, सिद्दीक का नारा। जोर से बोले, आप जोर से बोले, जबान को खोल के। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लगे नारा मुझे चुप रहना अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कामयाबी की तरफ क्या जाएगा तारीफ, जहाँ आला हजरत के नाम का नारा नहीं लगता। क्या सुन्नी बचलेगा मेरे मुस्तफा के नाम पे? क्या दिल से बोले, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो। हम सबका नारा, हम सबका नारा, हर सुन्नी का नारा, हर सुन्नी का नारा। आदम ने पुकारा, आदम ने पुकारा, मूसा ने पुकारा, मूसा ने पुकारा, ईसा ने पुकारा, दाऊद ने बोला, दाऊद ने बोला। हर सुन्नी बोले, हर कादरी बोले, हर रस्मी बोले, हर चिश्ती बोले, हर चिश्ती बोले, हर वाहिदी बोले, हर वाहिदी बोले, हर बरकाती बोले। मेरे दिल के अंदर, 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 मेरे दिल के अंदर। जोर से बोलो, जोर से बोलो, आपसे कहलवा रहे थे नबी नबी,
आदम ने बोला अली अली नहीं, क्या बोलोगे? समझ गए? हाँ, ये नारा बुलवा रहे थे। तो आधे अली अली बोल रहे थे, आधे नबी नबी बोल रहे थे। हाँ, नारा जो है ना मरातिब के एतबार से रखता है। हजरत अली से बड़ा मर्तबा सारे नबियों का है, क्योंकि सबसे बड़ा मर्तबा नबियों का है, और नबियों के बाद इंसानों में सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर का है, फिर उमर का है, फिर उस्मान का है, फिर अली का। ऊंचा बोलो। ये सुन्नियत है। कुछ ऐसे पीर भी आते होंगे जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोलते होंगे, आते तो नहीं है ऐसे? अरे बोलो यार। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताख कोई पीर आए तो उसको चप्पलों से इस्तेमाल करना, बाकी तो उसका कोई भी मकाम नहीं। उसकी वजह बता दूं, हजरत अमीर मुआविया मेरे नबी के सहाबी हैं, और सहाबी के लिए सरकार फरमाते हैं ला तमस्सुन नारो मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी, जहन्नम की आग में इतनी हिम्मत ही नहीं जो मेरे देखने वाले सहाबी को छू सके। यजीद बुरा है, यजीद के बाप यजीद के दादा दोनों मेरे नबी के सहाबी हैं। सुभान अल्लाह। और बेटे का जुर्म कभी बाप पर नहीं डाला जाता। वो बदबख्त है यजीद, उस कमबख्त ने हमारे आका हुसैन के साथ जुल्म किया, उसको हम कभी गवारा नहीं कर सकते। लेकिन इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर हाथ रखकर बयात करके हम सुन्नियों को बता दिया कि कभी भी अमीर मुआविया की तौहीन मत करना, इसलिए कि उनको तो मैंने भी मान लिया है। समझ गए आप? गौर कर रहे हैं ना? अब मैं कहा था आपको कुछ मालूम है? बात चल रही थी हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, घर वालों ने कहा कलमा पढ़ कलमा पढ़ कलमा पढ़ कलमा पढ़, लेकिन उसकी जबान पे कलमा चढ़ ही नहीं रहा है। परेशान हो गया, क्या किया जाए? आखिर घर वालों ने सवाल कर लिया, लेकिन मालम युगरगिर, जो हदीस में है कि गरगरे की कैफियत ना हो, अभी गरगरे की कैफियत नहीं थी। गरगरा आप नहीं समझते हैं, इंसान की रूह पैरों की तरफ से निकल के आकर जब हलक पे अटक जाती है, तो जब हलक से निकलती है तो अजीब सी गरगर की आवाज आती है, उसी को गरगरा कहा जाता है अरबी जबान के अंदर। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, अभी वो बोलने की ताकत रखता था, अभी उसकी जबान बंद नहीं हुई थी। घर वालों ने सवाल किया, जरा गौर करना, घर वालों ने सवाल किया, मियां कलमा पढ़ क्यों नहीं रहे हो? कहा कलमा कैसे पढ़ो? मेरे सामने ये दो बंदे खड़े हैं और खड़े होकर के कह रहे हैं तू हजरत उमर और हजरत अबू बकर के गुस्ताखी करने वाले के पास बैठता था। ये नहीं कहा कि तू गुस्ताखी करता था, बल्कि कहा इन दोनों के गुस्ताख की महफिल में बैठ जाता था। अब ये समझ रहा है कि तेरी जबान पे कलमा चढ़ जाएगा। हाशा वकल्ला, कभी भी तेरी जबान पे कलमा नहीं चढ़ेगा। तो भोजपुर के सुन्नी मुसलमानों, जरा फैसला करो, अगर सरकार के दो यार अबू बकर उमर की गुस्ताखी करने वाले की महफिल में बैठने वाला जब कलमे से महरूम किया जा रहा है, तो नबी के गुस्ताखों के साथ शादियां करने वाला, नबी के गुस्ताखों के साथ खाना पीना करने वाला, नबी के गुस्ताखियों के साथ गुस्ताखों के साथ उठने बैठने वाला, उनके जनाजे में जाने वाला, उनके साथ उनके मिजाज पूछने के लिए जाने वाला, कसम खुदा की इस वाक़िये की रोशनी में कह सकता हूँ कि जैसे वो महरूम कर दिया गया, ऐसे ये भी महरूम कर दिया जाएगा। और जिसको मरते वक्त कलमे से महरूम कर दिया गया हो, बताओ उससे ज्यादा कमबख्त इंसान कौन हो सकता है? हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, जिसने शादी खाना आबादी, जिसने शादी खाना आबादी, खलीफे सरकार ताज शरिया, नारे तकबीर।
बहुत उम्दा पैगाम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत 3-4 मिनट और रह गए, कहो तो 12वीं वाली की बारगाह तक पहुंचा के गुफ्तगू खत्म कर दो। वाह 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 वाह। हाँ? थोड़ी देर और बोल दूं, चूंकि मुझे लखनऊ का सफर भी करना था। वो दिल से बोल, अगर आपकी इजाजत हो। एक मरतबा सारे लोग दिल से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिसको हाथ दिया है, ये अगर हाथ सलामत है तो जिंदा दिल हो के हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, और दिल से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात समझ गए? अब आला हजरत के बयान करदा अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह के हवाले से गुफ्तगू करूं, अगर इजाजत हो तो। मैं अर्ज क्या कर रहा था, फ़असरहुम मलिकुर रूम, रोम के बादशाह ने उनको कैद कर लिया, और कैद करने के बाद नतीजा क्या हुआ बताओ? उसने कहा इन्नी अजालु फीकुम मुल्का व उसव्विजुकुम बनाती व अंतुम तदखुलूना फिन नसरानिया। कहने लगा शर्त एक ही है, बादशाहत भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, बेटियां भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। देखो ईसाई क्या कर रहा है, 3 मुसलमान बच्चे जो नबी के वफादार हैं, सरकार के वफादार हैं, नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर इस्लाम की हिफाजत और सियानत के लिए दिन में जिहाद करते हैं, रात के अंदर अल्लाह की इबादत किया करते हैं। ये उनका मिजाज था, मगर इस्लाम से फेरने के लिए, इस्लाम से हटाने के लिए उसने तरीका का इख्तियार किया। कहा रूम की बादशाहत तुम्हारे नाम है, मेरी लड़कियां तुम्हारे नाम है। मगर गौर करना, यही मिशन तो वहाबियों का है, यही मिशन तो देवबंदियों का है। लोग कहते हैं हम अपनी लड़की देंगे नहीं, लड़की लेकर के आ जाएंगे। मैंने कहा मछली तुम बेचो या मछली तुम खरीदो, दोनों सूरतों में गंदगी तो आएगी ना, बदबू तो आ रही है। अगर वहाबी की लड़की लेकर के आओगे, ठीक है तुमने सुन्नी बना लिया, लेकिन कम से कम उसके समधियाने में, उसके मायके में जाओगे, अपने समधियाने में जाओगे कि नहीं? लड़की के नाम पर लड़की का बाप भी तो आएगा। तो फिर ऐसी सूरत में सरकार की हदीस बोलती है, मन फकरा साहिबा बिदअतिन फकद आना अला हदमिल इस्लामी, जिसने एक भी बिदअती गुमराह बद्दी नबी के गुस्ताख की ताज़ीम की है, याद रखना वो इस्लाम को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तुम मुसलमान होकर अगर इस्लाम को बर्बाद कर रहे हो तो उससे बड़ी नहूसत क्या हो सकती है? हाँ, आबाद करना ये है। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा जो गैर शादीशुदा है, ये पैगाम लेकर के जाए, क्योंकि मौका शादी का है, इसलिए मैं इस्लाम का पैगाम शादी ही के एतबार से दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे निकाह में, अगर तुम्हारे निकाह में कोई सुन्नी गरीब लड़का मिल जाए तो कसम खुदा की उसी से शादी कर लेना, मालदारी के चक्कर में मत रहना। इसलिए कि दिल में इस बात का तो यकीन होगा कि वो भी नबी का वफादार है, मैं भी नबी की वफादार जो है। क्या कहा उसने? व अंतुम तदखुलूना फिन नसरानिया, तुम इस्लाम को छोड़कर ईसाई बन जाओ। और मेरे मुसलमानों, आज तुम्हारी बेटियों पर नजरें बद लग गई है। कॉलेजों में जाती हैं बेटियों को, न जाने कौन कौन नजरें बद से देख करके उनको इस्लाम से दूर करने की कोशिश कर रहा है। हो रहा है कि नहीं? कितनी बच्चियों ने अब तक इस्लाम छोड़ करके कुफ्र को अपना मस्कन बना लिया। काफिरों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करना बहुत मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जो बच्ची मुसलमानों के अंदर किसी गरीब लड़के के साथ रहना पसंद न करती हो, आखिर वो काफिर के साथ रहने का फैसला कर ले, कितना खतरनाक मसला है। कितनी बच्चियां तुम्हारे हाथों से, हमारे हाथों से निकलती जा रही है। कभी आपने गौर किया? उनको ये वाक़िया सुना देना। उसने क्या कहा था? बादशाहत तुम्हारे नाम है, लड़कियां तुम्हारे नाम है। ये तीनों नबी के वफादार थे। इन्होंने क्या किया? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही मुल्क रूम के अंदर बैठे हैं, सरकार को पुकार लगे, कहने लगे वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं और पुकार कर ये सहन दे रहे थे। ए रूम के बादशाह, तू क्या समझता है, तू क्या समझता है? अरे आपके लिए आसान कर देता हूँ। गोया वो ये कह रहे थे जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें बोल कर दिया। मेरी बहनें जो कॉलेजों में जाती है, किसी काफिर के साथ फेसबुक पर दोस्ती ना करे। अगर कोई चक्कर में डालने की
बात करता है। स्कूलों में जाती हो पढ़ने के लिए, अगर कोई काफिर दोस्ती करना चाहे, नफरत की निगाह से देखना, तालीम हासिल कर रही हो उसी पर तुम्हारी तवज्जो रहे, लेकिन कोई दोस्ती नहीं, कोई भी डिमांड नहीं, कोई भी कुर्ब नहीं, कोई भी नजदीकी नहीं, उसके बिल्कुल पास आना नहीं है, बल्कि उससे ये कहना, अबे बेवकूफ, हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, क्या समझता है हम तेरी मोहब्बत में डूबकर अपना हाथ तेरे हाथ में दे देंगे? अरे हमारी बोली तो ये है, जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। रोम के बादशाह ने जब मेरे नबी के वफादारों के साथ ऐसा किया तो उन्होंने कह दिया, वाह मोहम्मदा, थक तो नहीं गया? अगर थक गए हो तो आपसे ज्यादा थका हुआ मैं, समझ गए? हाँ, अगर आपकी भी थकान होगी, मेरी थकान होगी, तो मजमा तो फिर उसके बाद उजड़ जाएगा। चलो एक शेर पढ़ देता हूँ ताकि आपका जो सूखा चमन है वो हरा भरा हो जाए, अगर इजाजत हो। उनका मांगता, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। बच्चा पढ़ रहा था ना एक कलाम, मैंने सोचा मैं भी पढ़ दूं। जी जी, क्या बात, तुम्हें क्या हो गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे थोड़ी के नीचे हाथ रख के बैठे, कफे अफसोस बन रहे। ये गम का वक्त नहीं है, खुशी का वक्त है। सुभान अल्लाह। उनका मांगता, जो मांगता है बोलेगा ना मेरे साथ, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले, सरकार मुफ्ती आजम क्या कहते हैं मालूम? मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जान इशारा करो मैं। अब ये शायद क्या कह, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। कुछ लोग बड़े खामोशी के साथ बैठे हुए, बोलिए तो मोहब्बत से, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। उनका मगता। और अहले मिंबर के लिए खास तौर से इतना देना चाह रहा हूँ। क्या ख्याल है तारीफ? आला हज़रत का ये कलाम भी इस अंदाज में पढ़ा जा सकता है। तेरी सरकार मिलाता है राजा उसको शफी, जो मेरा गौस है अरला दिला बेटा तेरा। अच्छा, ये कलाम आला हज़रत ने 100 साल पहले जो नात लिखी थी वो बार बार पढ़ते हो, सलाम भी पढ़ा जाता है ना, मुस्तफ़ा जान रहमत। अच्छा, आला हज़रत भी वाकई अगर यार खासाब हो तो ऐसा जिद्दी खासाब, सरकार के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं तो मालिक ही कहूँगा, मेरा अंदाज देखिए, मैं तो मालिक ही कहूँगा। तू रोक पाएगा रे? रोकेगा? है तेरे अंदर इतनी हिम्मत? रोक। इमाम अहमद रजा खान क्या कह रहा है? मैं तो मालिक ही कहूँगा। मैं तो मालिक ही कहूँगा। हमने कहा आला हजरत दलील कि हो मालिक के हबीब। क्यों कह रहा मालिक? कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा।
सुभान अल्लाह। भैया समझ में आ रही है बात? सर से ऊपर तो नहीं जा रही है? अब पीछे ना हम आपसे ही पूछ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला का करम है, बात समझ में आ रही है कम से कम। न जाने किस किस के समझ में आ रही है और किस किस के नहीं आ रही है। अल्लाह करे सबकी ही समझ में आ जाए। शेर समझ सुनाऊं मैं आपको? क्या मैंने कहा? आला हजरत का कलाम भी 100 साल पहले, सलाम भी 100 साल पहले लिखा गया, लेकिन आज भी सलाम की गूंज ये है। अभी मैं रमजान शरीफ के महीने में दुबई के दौरे पर था। 26 तारीख को मैं वहां से लौटा हूँ, 26वें रोजे को। मैंने वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर जुमे में आला हजरत का कलाम सुना, बल्कि हर महफिल में मैंने आला हजरत का कलाम सुना तो मेरा दिल अंदर से कह रहा था, वाह इमाम तेरी शान भी कितनी अजीब है, पैदा इंडिया में हुआ, नाम पूरी दुनिया में हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर में फतवा लगा, मेरे इमाम ने कलाम लिखा, सलाम लिखा, सलाम लिखा। क्या मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम से पहले सलाम ये है, क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका। पठान हो तो ऐसा हो, ऐ जिद्दी पठान, नबी के सामने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कुफ्फार मुशरिकीन हो, या नबी के गद्दार हो, सबके सामने चट्टान बना खड़ा है। इमाम अहमद रजा खान ने देखा कि बदअकीदा एतराज कर रहा है। एक बार कहा है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। बदअकीदा बोला, नबी तो माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। अहमद रजा खान तू क्या कर रहा है? सलाम पढ़ भी रहा है, पढ़वा रहा है। तब आला हजरत का इश्क झंझोड़ता है, अहमद रजा का कलम चलता है, कलम जुम्बिश में आता है, हरकत में आता है, एक्शन में आता है। कलम चला तो कैसा चला? मेरे इमाम ने देखा एतराज एक बार पर हो रहा है। आला हजरत कहने लगे, अब एक बार नहीं पढ़ोगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बस में हिदायत पे लाखों सलाम। फिर देखा ये बदअकीदा लाखों पर भी एतराज कर रहा है। तब आला हजरत का कलाम उठा और लिखने के बाद एक बार पढ़ा था, एतराज हुआ। आला हजरत ने लाखों बार लिख दिया, लाखों बार पर एतराज हुआ। तब आला हजरत कहने लगे, काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, के शम्सु तुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन बदअकीदा फिर बदअकीदगी फैला रहा है, नबी पे सलाम और नबी के दुरूद पर एतराज कर रहा है। तब आला हजरत के इश्क ने झंझोड़ा, कहा अहमद रजा खान एक बार पढ़ना भी तो गिनती है, 100 बार पढ़ना भी तो गिनती है, लाखों बार पढ़ना भी तो गिनती है, करोड़ों बार पढ़ना भी तो गिनती है, मुंह बंद कर क्यों नहीं देता? तब आला हजरत कहने लगे, हम गरीबों के आका पे बेहद क्या कहिए, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। एक बार पर एतराज करेगा तो अहमद रजा खान लाखों बार पढ़ेगा, लाखों पर एतराज तो करोड़ों बार पढ़ेगा, करोड़ों पर एतराज तो फिर बेशुमार पड़ेगा। तू एतराज करता रहे, अहमद रजा खान पढ़ता रहे, सुन्नियों से पढ़वाता। समझ गए आप? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, इतना जमाना गुजर गया तारीफ में, है ना, इतना जमाना गुजर गया, मगर कभी महसूस होता है कि आला हजरत का कलाम पुराना हो गया है, अब कोई नया सुनाओ। ये भैया जो पीछे बैठे हैं, हाँ जरा ध्यान से सुन लो, मोबाइल जेब में रखो थोड़ी देर के लिए। पूरी जिंदगी मोबाइल ही चलाते रहोगे या मरने से पहले कुछ इंतजाम भी करोगे? हाँ? इस मोबाइल ने तबाह कर दिया तुम लोगों को, लेकिन तबाही का एहसास नहीं। उससे बड़ा पागल कौन होगा जिसका घर लुट रहा हो और वो घर के बाहर बैठकर खिल्ली उड़ा रहा हो। यही तुम लोगों का हाल हो गया। बहन बेटियों का कल्चर खराब हो रहा है, बेटियां दूसरों के हाथ में जा रही है। मेरी कौम के नौजवान को मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। दिन भर पिक्चर देखेगा, इसको तो वीडियो देखो, कॉमेडी देखो, हंस रहा है बैठ के। तुम्हें मालूम है तुम्हारा बैत क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस इस वक्त यहूदियों ने कैसे घेर रखा है? कितनों को खबर है? रमजान में तौफीक हुई दुआ करते, जिस क़िबला अव्वल की तरफ मेरे नबी ने तकरीबन 17 महीने तक मुंह करके नमाज पढ़ी हो, आज वो क़िबला अव्वल ठाने के लिए यहूदी तुले हुए हैं, उसको गिराने के लिए तुले हैं। फिलिस्तीन की वो बहनें और माएं, अल्लाह उनका जज्बा सलामत रखे। हाथों में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ पत्थर है, पत्थर लेकर खड़ी है, मुसल्ला लेकर खड़ी है, तस्बीह लेकर खड़ी है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रही है और तुमसे दुआएं लगा रही है। अरे कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम मस्जिदों में जाकर दुआएं तो कर सकते हो। इश्क मोहब्बत होते अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारा तकबीर,
سن لیجیے، اس کے بعد واقعہ مکمل کر کے گفتگو ختم. سمجھ گئے؟ ہاں، زیادہ تھکے ہارے لوگوں کو زیادہ تھکانا نہیں چاہیے اور بہت دیر سنانا بھی نہیں چاہیے. بس اتنی دیر سنیں کہ آپ کا جذبہ بیدار رہے، اور اللہ کرے تو کسی آنکھ میں آنسو آ جائے نا تو پھر اس کے بعد کام ہو جائے گا. غور کر رہے ہیں نا؟ کلام نبی کا پرانا کبھی کیوں نہیں ہوتا؟ نعت مصطفیٰ کبھی پرانی کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ بتاؤں. نعت پڑھتا تو آتی ہے مہک طیبہ سے، نعت پڑھتا تو آتی ہے مہک طیبہ سے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے، اونچی آواز میں، یہ حوالے ہمیں رسوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں شاخ ہیں. ان سے اس نے روم کے بادشاہ نے کہا اتنی اجالو فی کمبل کا، اگر تم نے اپنا اسلام چھوڑ دیا، عیسائی بن گئے، تو یاد رکھو بادشاہت بھی تمہارے نام کر دوں گا. وہ زوجکم بناتی، اور اپنی بیٹیاں بھی تمہارے نام کر دوں گا. لیکن نبی کریم علیہ السلام سے حد درجہ محبت ہے. فوراً میرے نبی کو پکارنے لگے. سنیو ذرا غور کرنا. بد عقیدہ کہتا ہے اتنی دور سے پکارتے ہو، نبی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب میں ان شہیدوں کی بات بتا رہا ہوں. علامہ ابن الجوزی کے اندر نے اپنی کتاب عیون الحکایات کے اندر تحریر فرمایا. انہوں نے سرکار کو پکار لیا، واہ محمدہ واہ محمدہ، سرکار کو پکار رہے ہیں. بادشاہ نے کہا ایسے ماننے والے نہیں، ایسا کرو 2 کڑاؤ لائے جائے. بڑے بڑے برتن اور کڑاؤ لائے گئے، ان میں تیل کھولایا گیا. اس کے بعد 2 جوانوں کو ڈال دیا گیا، لیکن ایک جوان جو چھوٹا بھائی تھا اس کو روک لیا گیا. وزیر نے کہا میری بیٹی حسین و جمیل ہے، اس کے چنگل میں پھنسا دوں گا، حسن و جمال سے وہ اپنی طرف مائل کر لے گی. لیکن قسم خدا کی انہیں کیا پتا تھا جن آنکھوں میں مدینے والے کا جلوہ بس جاتا ہے دنیا کے جلوے کام نہیں کیا. 6 مہینہ گزر گیا. چھوٹے والے بھائی کو وہ لڑکی آتی، عبادت کرتا وہ بندہ، پوری رات آ کے بیٹھی رہتی، اپنے جلوے حسن و جمال دکھانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ نظر ہی نہیں مارتا. 6 مہینے کے بعد خود کہنے لگی اے بندہ خدا یہ تو بتا تیری نظروں میں کس کا حسن سما گیا ہے؟ میں تو حسن و جمال کی پیکر ہوں، میرے حسن کے چرچے ہیں، میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال دیا ہے، لیکن تیری آنکھوں میں کس کا حسن و جمال بسا ہے؟ آخر کا وجہ ہے تو میری طرف مائل کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جس کی نظروں میں مدینے والے کا حسن و جمال بس گیا ہو تجھے کیسے دیکھ پائے؟ اس نے کہا جس کے حسن میں تو دیوانہ ہو چکا ہے، مست ہو چکا ہے، ایسا کر اس حسن والے کا حسن مجھے بھی دکھا دے. سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. ناظم صاحب، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی.
سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مغدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مغدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ 6 مہینہ گزر گیا ہے، 6 مہینے کے بعد میں اس لڑکی نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت میں وہ بھی مست ہو گئی ہے۔ اب اس نے کہا میرا باپ تو بادشاہ کا وزیر ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا، جان سے مار دے گا، ایسا کرتے ہیں گھر چھوڑ کر کے ہم دونوں نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی وفادار بن گئی ہے، وہ بھی نبی کا وفادار پہلے سے تھا، اس نے دنیا نہیں دیکھی، نبی کریم علیہ السلام کے حسن میں مست رہا، آخر وہ لڑکی بھی اس یہودی بس عیسائی مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئی۔ جنگل میں جا رہے تھے، اچانک کیا دیکھا، لڑکی کہنے لگی ہماری شادی میں کوئی باراتی تو نظر نہیں آتا، ہم تو 2 ہی ہیں، آپ ہو میں ہوں، اب ذرا غور کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا، ہماری شادی میں شرکت کون کرے گا، آئے گا کون، نکاح میں گواہ کون بنے گا، ذرا یہ تو بتاؤ۔ یہ باتیں چل رہی تھی، کیا دیکھا، سامنے سے گرد و غبار اڑی، گھوڑے آ رہے ہیں، قریب آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا، یہ جو بھائی زندہ بچ گیا تھا دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا اور پوچھنے لگا، آپ چہرے پر نظر ماری، کہنے لگا بھائی آپ کو تو کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا لیکن آپ بچ کیسے گئے ہو؟ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ اس کے دونوں بھائی تھے جو اس کی نظروں کے سامنے کڑاؤ کے اندر کھولتے تیل میں ڈالے گئے تھے۔ ان بھائیوں نے جواب دیا ما کانت الا الغطسۃ التي رأيتها حتى خرجنا في الفردوس، کہنے لگے میرے بھائی ذرا غور کر، ہمیں تیرے سامنے کڑاؤ میں ڈالا گیا اور میں نے نبی کی حدیث سنا دی، الا ان الشہید لا یجد احدکم لا یجد علم القتل لا یجد علم القتل الا كما یجد احدکم علم القرصہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں شہید جس وقت شہادت کا جام پی رہا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جیسے تم میں کسی کو چوٹی کاٹ لیتی ہے تو درد ہوا کرتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ بہت معمولی درد ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، وہ دونوں بھائی آئے، آنے کے بعد اپنے بھائی سے کہتے ہیں میرے بھائی وہ ایک ڈبکی تھی جو ہمیں تیل میں دی گئی، ڈبو دیا گیا، لیکن اس کے بعد اللہ کا کرم یہ ہوا ادھر ہم ڈوبے حتی خرجنا فی الفردوس، کہنے لگے اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے فوراً ہمیں جنت کا عیش و آرام عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی نبی کی محبت میں مر جاتا ہے تو موت بھی اس کے لیے تحفہ بن جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنی خاص فضل و کرم سے میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور مجھے سفر بھی کرنا تھا، میں اسی لیے اپنی بات کا اختتام نہیں کر رہا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم سب کو زندہ رکھیں۔ سمجھ گئے؟ ایک ہاتھ اٹھائیے سب لوگ، سیدھا ہاتھ اٹھائیے۔ وہابیوں کے ساتھ دوستی نہیں، وعدہ، ہاتھ اٹھائیے ہاتھ۔ اگر قبر میں جا کر کے سکون پانا، اس لیے کہ تمہارا میرا باپ نہیں آئے گا، رسول پاک آئے گا، اب بھی بتا رہا ہوں۔ اگر نبی کے ساتھ دوغلی پالیسی کی تو نبی تو سب دیکھ رہے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، نبی سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب ہاتھ اٹھائیں،
वहाबी से दोस्ती, वहाबी के यहाँ लड़की देना या लेना, खान पान, उठना बैठना, शादियां सुन्नियों ही में करेंगे, शादियां सुन्नियों होंगे, रिश्ते किससे जोड़ेंगे? सुन्नियों से ही जोड़ेंगे। अल्लाह ताला आपके इस वादे को बरकरार रखने की हम सबको आपको तौफीक अता फरमाए। बस मैंने बात के लिए इख्तिताम कर दिया, खत्म कर दी बात। बस आपसे ये अर्ज करूंगा कि जिन्होंने अपने गले में चैन पहनी है वो चैन निकाल दे, जिन्होंने हाथ में चैन पहनी है वो हाथ के चैन निकाल दे, जिन्होंने कड़ा पहना है वो कड़ा निकाले, जिन्होंने धागे बांधे हैं वो धागे निकाले। ये सब नाजायज और हराम है। तो तुम्हारे यहाँ कन्नौज में चंद खबरें निकली थी ना आसपास में, वो सब ड्रामाबाजी तो अब के सामने आई गई होगी ना। हमारे यहाँ सुन्नियों इतना कमजोर मामला नहीं है। कुरान कहता है वइज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मा व उम्याना। अल्लाह के बंदों की सिफत ये है कि जब उनको अल्लाह की आयतें याद दिलाई जाती है तो औंधे और गूंगे बन के गिरते नहीं है, बल्कि अक्ल का भी इस्तेमाल करते हैं। मियाँ कब्र से मजार जो है जमीन से निकलते नहीं है, जमीन में बनाए जाते हैं। समझ गए? और हदीस सुन लीजिए, लाअनल्लाहु मन ज़ारा बिला मज़ारिन। अल्लाह की लानत है उन लोगों पर जो डुप्लीकेट मज़ार पर हाजिरी देने जाते हैं। सच्चे वली है उनकी बारगाह में जाओ, जिनके मज़ारात की सनद है वहाँ हाजिरी दो। इतने वली कम है कि ख्वाजा गरीब नवाज है, साबिर पाक है, आला हजरत है, मुफ्ती आजम है, ताजुश शरिया है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंद शरीफ के अंदर है। इतनी मोतबर बारगाहें, वहाँ जाइए। आपके आसपास में जो मोतबर कब्र हो वहाँ जाइए, वहाँ जाके हाजिरी दीजिए। सरकार फरमाते उतलुबुल हाजात इंदा खिसारिल वजूह। अच्छे चेहरे वालों की बारगाह में जाके अपनी जरूरतें मांगा करो, क्योंकि अल्लाह उनके सदक़े में जरूरतें पूरी कर दिया करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।